ओके सो वेलकम बैक एवरीवन। कम होते जा रहे हैं आपके पार्टिसिपेंट्स। हम सुबह 22 थे, फिर 20 हो गए, अब 18-15 रह गए। लेट मी गेट योर अटेंडेंस फॉर दिस सेशन। Session 2. Today is 10th November 2020. Okay, so your attendance is done. Let me share the same screen slide with you. अच्छा जी, so अच्छा आप लोग एक जो आपको मैंने टेक्स्ट बुक ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की है उसमें कोर्स साइट पर, उसमें आई थिंक चैप्टर नंबर 3 है ये माइन गैसेस का ना। तो जो बल्क ऑफ द कंटेंट अभी तक मैंने आपको स्लाइड्स में शो किया है वो वहीं से आ रहा है, ऑल्दो देयर आर सम एडिशन इनटू दीज स्लाइड्स एज वेल. Once we will finish these handouts, I will share this file with you as well, क्योंकि this is actually being made from multiple sources. So you will although have access to all the content, but in the meantime, जब तक हम ये conclude नहीं करते slide set और जब तक मैं इसको आपके साथ share नहीं करता, I will encourage all of you to go and start reading chapter number 3. This is one of the very आप कह लें key chapter in your course, in your degree, and this also has got a very high significance, especially in mines as well. क्योंकि जब भी आप किसी भी अंडरग्राउंड माइन में जाएंगे, वहाँ सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन आपके लिए कंसर्न का होगा वो यही होगा कि यार इस माइन में पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, पॉइजनस गैसेस हैं, टॉक्सिक गैसेस कौन कौन सी हैं, अदर देन टॉक्सिक जो अदर पोल्यूटेंट्स हैं लाइक डस्ट और डीपीएम, ये इनकी क्या सिचुएशन है, बिकॉज ऑल दोज थिंग्स दे डायरेक्टली इम्पैक्ट और इफेक्ट ओवर ब्रीदिंग, वर्किंग ऑफ द माइनर्स, उनकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करती हैं, उनकी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं. And if we do not have all those pollutants under control, eventually उससे यही है कि this will eventually result into several long-term acute और या chronic acute diseases में भी हो सकता है, chronic diseases में भी ये result कर सकता है. और eventually as we have seen that मतलब mining is one of the most hazardous industry, and it usually causes more than more fatalities as compared to any other industry as well. तो उसमें एक जो इम्पैक्ट है काफ़ी ज़्यादा वो इन तमाम चीज़ों के ख़ास तौर पे अंडरग्राउंड माइंस में पोल्यूटेंट्स का और गैसेस का, एक्सप्लोजन्स का, फायर्स का, इसका भी बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल है. और in addition to this, even if there are less pollutants inside the mine, still we need oxygen, because without oxygen no one can go inside the mine and work. तो उस हवाले से भी ये आप समझ लें कि शायद आपका जो अंडरग्राउंड माइनिंग से रिलेटेड किसी भी आप माइन पे विजिट करेंगे तो जो फर्स्ट आपका नॉलेज होगा ना, या फर्स्ट जो चीज़ें आप टेक केयर कर रहे होंगे बिफोर एंटरिंग इनटू एनी अंडरग्राउंड माइन, वो यही हैं जो गैसेस, पोल्यूटेंट्स और कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल दोज थिंग्स से रिलेटेड है. सो आई विल हाईली इनकरेज ऑल ऑफ यू टू गो एंड रीड दोज कंटेंट. चैप्टर को अच्छी तरह रीड करें. सम ऑफ द थिंग्स यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ ना आए. So discuss it with your other fellows, and eventually, if you are unable to identify the right answers, come and talk to me. I might be able to find the right answers for you. Or if I will not be able to, I will try to figure it out. Because knowledge is a kind of ocean. It is unlimited. So it is very hard to claim that everybody knows everything, or even a certain subject specialist knows everything about its topic. So we'll try to find answers collectively if there is a need. Hopefully, I might be able to answer most of your questions, but every now and then things they just pop up, and sometimes I also have to dig into some of the things, and then
That is how the knowledge is basically, this is how this system works. अच्छा जी, so सल्फर डाइऑक्साइड की बात हो गई, हाइड्रोजन सल्फाइड की बात हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड we have covered partially, and then, and I mean in detail, not partially. Then we also discussed methane. Now let's talk about the oxides of nitrogen. So nitrogen dioxide is not only the more common of the two, but अच्छा जी, oxides of nitrogen में basically दोनों आते हैं, NO and NOx. Usually NO2 इसके साथ होता है. So इसकी जो characteristics हैं कुछ, उसमें yellow to reddish brown color है, biting and choking smell, blasting powder fumes की इसमें आप क्या लें, क्योंकि ये this is one of the resultant gas after the blasting. जब भी हम डायनामाइट या कोई एक्सप्लोजिव जब भी हम ब्लास्ट करते हैं, तो ये उसकी बाय प्रोडक्ट के तौर पर या उसकी आफ्टर कंबस्शन या आफ्टर एक्सप्लोजन प्रोडक्ट्स के तौर पर भी आती है. Easily dissolvable by moisture in mines. So this is a very key thing here. I remember when I used to work in I spent almost couple of weeks एक हम project कर रहे थे ट्रोना mine में ना, that was in I think Wyoming, Rock Springs city था और Wyoming जो था वो state थी. तो वो थी ट्रोना माइन थी वहाँ पर. और द रीज़न टू मेंशन हियर अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस इज कि वहाँ पर ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट थे अंडरग्राउंड माइंस में ना. रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड था. सो वन ऑफ आवर ग्रुप मेंबर ही यूज्ड टू वियर कॉन्टैक्ट लेंसेज. तो वो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनता था ना आमतौर पे हमारा एक ग्रुप मेंबर जो था. तो व्हेन वी वेंट ऑन द फर्स्ट डे ही स्टार्टेड टू हैव सम इरिटेशन इन हिज. फिर उसके बाद सेकंड डे में जब हमने दोबारा माइंस वालों से डिस्कस किया कि यार इसको इरिटेशन है, सो देन दे एक्चुअली फॉरगेट टू मेंशन कुछ एरियाज में, नॉट इन ऑल द माइन बट इन सर्टेन एरियाज वेयर दे वर वर्किंग एट दैट टाइम, वहां पर कुछ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा थी. सो व्हाट हैपेंस समटाइम्स व्हेनेवर जो हमारी आईज होती हैं उसके अंदर आपको पता ही है उसमें थोड़ा सा उसमें डेफिनेटली उसमें पानी होता है. अगर ड्राई आईज होंगी तो उस इन नॉर्मल सिचुएशन हमारी आईज जो है वो वेट होती हैं. तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो ऑक्साइड समटाइम्स if their concentration is relatively higher in the mines, they can also interact with the moisture which is present inside our eyes, and then it can cause eyes burning हो जाती है. और अगर उसकी concentration बहुत ज़्यादा हो तो फर्दर मतलब आप कह लें उसमें थोड़ा सा ज़्यादा severe reactions या infections भी हो सकते हैं. So eventually उसमें मतलब उसकी जो remedies या precautionary measures यही थी कि we used to go to those, एक तो यही है कि उन areas में we need to be very careful while going into those areas. फिर यह है कि safety goggles का use लाजमी use करना है, या goggles या safety glasses, ताकि whenever we are traveling into the mine car, तो जो opposite stream से air है जिसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड मौजूद है वो डायरेक्ट हमारी आईज में जाकर ना मतलब फ्लैश करे ना. अगर हमने गॉगल्स लगाई होंगी तो वो डायरेक्टली हमारी आईज में डायरेक्ट इंटरेक्शन उसका कम हो जाएगा. सो स्टफ लाइक दैट. अच्छा जी, ये भी काफ़ी हैवियर गैस है. इसकी एक और जो सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक है एज कंपेयर टू सम अदर गैसेस, इट टेंड्स टू सेटल डाउन ऑन द ड्राई मक पाइल बिकॉज दिस इज आल्सो अ हैवियर गैस, or this is the byproduct, or this is the product of this is the gas which is being produced after blasting या blast fumes से ये produce होती है. तो उस केस में it tends to settle down onto the dry muck pile and pose danger during loading. So in a couple of times some incidents have been reported in which these gases have taken the life of the miners, and the only reason was जो एक नॉर्मल किसी भी मैकेनाइज्ड माइन में जो साइकिल होता है ना, वो ये होता है कि दे विल बी ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, उसके ब्लास्टिंग के बाद एक आपका होगा शिफ्ट इंचार्ज या साइड मतलब आप कह लें शिफ्ट इंचार्ज हो सकता है, साइट सुपरवाइजर हो सकता है, या कोई भी थोड़ा सीनियर लेवल का बंदा होगा, नॉट जस्ट दी लेबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ मैनेजरियल उसका टाइटल होगा. वो जाता है माइन के फेस पर एंड ही डिटेक्ट्स, उसके साथ मॉनिटर, वो पास मॉनिटर्स होंगे, ही शुड गो टू द माइन फेस एंड डिटरमिन द कंसंट्रेशंस ऑफ डिफरेंट गैसेस, जिसमें मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, या इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह भी.
So some of the incidents that I was mentioning, they have been reported in which the inspection has been done, और इंस्पेक्शन में जो रिजल्ट्स थे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के वो नॉर्मल आए, यानी आप समझ लें कि विद इन अलाउएबल लिमिट्स थे. सो द ड्राइवर ही वेंट, द मैनेजर ही केम आउट ऑफ फ्रॉम दैट वर्क फेस, उसने अपने आप कह लें लोडर ड्राइवर को वहाँ पर कह दिया कि जी द एयर इज क्लीन, यू कैन गो एंड स्टार्ट वर्किंग. तो जब लोडर ड्राइवर वहाँ गया, सो इवेंचुअली उसने क्या किया, मक पाइल को उसने अपने लोडर से डिस्टर्ब करना स्टार्ट किया. When he started to disturb the muck pile, so जो नाइट्रोजन ऑक्साइड थी वो चूंकि सेटल डाउन हुई हुई थी मक पाइल के साथ साथ ना, आप कह लें, क्योंकि हैवी गैस थी, तो उस केस में वहाँ पर कंसंट्रेशन, जब उसने उसको डिस्टर्ब किया तो वो मिक्स होगी बाकी एयर में, एंड रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन वर बीइंग ऑब्जर्व्ड. और उस केस में आप कह लें कि कुछ एक दो मतलब फर्टेलिटीज जो हैं वो मतलब हिस्टोरिकली रिपोर्टेड हैं इस केस में. So the lesson to learn from here is, especially अगर हम ब्लास्टिंग के बाद concentrations मेजर करने जा रहे हैं अपने वर्क फेस में, तो उस केस में we must need to make sure कि ऐसा नहीं है कि आप हायर एरियाज में कंसंट्रेशन डिटरमिन कर लेना, हाई हाइट पे आपको चाहिए कि आप मतलब लोअर जोन्स में भी कंसंट्रेशन को डिटरमिन करें, so that in order to avoid any of such instance in the future. अच्छा जी, आई एम नॉट डिस्कसिंग ईच एंड एवरी बुलेट, वो आप लोग उसे रीड कर लीजिएगा, होपफुली यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रॉड आइडिया ऑफ ऑल दोज डिफरेंट पोल्यूटेंट्स एंड इफ दे हैव एनी अदर सिग्निफिकेंट और सेलिएंट फीचर विच आई एम डिस्कसिंग. सो द एक्चुअल TLV इसकी है जी 3 ppm, वेरी लो. मेरा ख्याल है कार्बन मोनोऑक्साइड की शायद 50 थी. कुछ गैसेस जो हमने अभी, जैसे हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड की 5 है, हाइड्रोजन सल्फाइड की शायद के 10 थी. तो आप ये देखें इसकी जो ppm है या TLV है, बेसिकली TLV क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू या अलाउएबल लिमिट ना, तो वो है 3 ppm, इवन लेस देन दैट. The toxic oxides of nitrogen, they react with the moisture and forms nitrous and nitric oxide. Sometimes very small quantities of these gases, they can cause death by combining with the moisture in the lungs. So ये किस तरह से, जैसे हमने उसका देखा था जो कार्बन मोनोऑक्साइड थी, इट रिएक्ट्स विद द हेमोग्लोबिन, या वो अपने आप को अटैच कर लेती है हेमोग्लोबिन से और हमारी ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इवेंचुअली ख़त्म करके फर्टिलिटी विल अकर. इसके केस में क्या है कि इफ़ अ पर्सन विल इनहेल कार्बन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सो चूंकि ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये मॉइस्चर के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं. सो लेट्स से if a person will inhale those oxides, that air which has the concentration of oxides of nitrogen, it will go into his lungs में अगर कोई मॉइस्चर वगैरह उसका है उनके साथ, हो सकता है वो नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाए और इवेंचुअली इट विल corrode the lungs and some other respiratory passages, और इवेंचुअली उस केस में फिर ये होगा, उसके आपकी लंग कैपेसिटी ख़राब हो जाएगी और a person will eventually die. High poisonous, 7 to 10 times even more toxic than carbon monoxide. So again, we are again referring here carbon monoxide, because carbon monoxide, we have highlighted carbon monoxide as one of the main one of the major killer gas in underground mine openings. तो उस केस में ये उससे भी ज़्यादा poisonous है. So we can actually imagine. इसकी भी बड़ी high affinity है hemoglobin के साथ. At concentration of 207 ppm is rapidly fatal. चलें बाकी आप इसको रीड कर लीजिएगा. This chart describes some other impacts of exposure to these oxides of nitrogen. TLV is 3 ppm and so on and so forth. अच्छा जी, उसके बाद next one is hydrogen. Excuse me. Okay, so hydrogen is a colorless, odorless, tasteless, non-toxic and lightest of all the gases. आपको पता ही होगा इसका शायद एटॉमिक मास या जो मोलिकुलर मास है कितना, 2 होता है, 1 + 1 2 पॉइंट समथिंग. इसके जो सोर्सेज हैं माइंस में ज़्यादातर चार्जिंग बैटरी. अच्छा, समटाइम्स वी यूज़ डीजल इक्विपमेंट, समटाइम वी यूज़ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लोकोमोटिव्स के तौर पर, बट एट द सेम टाइम बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट भी यूज़ किया जाता है. तो इफ़ वी आर यूजिंग अ बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट इन अंडरग्राउंड माइंस,
उस केस में उन बैटरीज के चार्जिंग स्टेशंस भी होंगे। सो वहाँ पर जहाँ पर चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पर इस गैस की काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस होगी। दिस इज दिस इज नॉन टॉक्सिक, आई मीन ऐसा नहीं है एज कम्पेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। दिस इज नॉट टॉक्सिक, बट इसका जो दूसरा इसका जो डेंजरस या आप कह लें थोड़ा अलार्मिंग पहलू है वो है इसकी एक्सप्लोजिव नेचर। सो दिस इज वेरी एक्सट्रीमली एक्सप्लोजिव एंड मीथेन के केस में रेंज बड़ी नैरो सी थी, 5 to 15, मतलब इफ द मीथेन इज मोर देन 15%, excuse me, the chances that it will have an explosion are less or none। वो जो हमने excuse me कॉवर्ट्स डायग्राम को डिस्कस किया, इसकी जो फ्लेमेबल लिमिट है वो बहुत ह्यूज है। आई मीन रेंज इसकी काफ़ी बड़ी है, फ्रॉम 4 to 74। दिस इज एक्सप्लोजिव, जो इसकी एक्सप्लोजिव रेंज है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा, ऑल दो इट इज़ नॉट वेरी अबंडेंटली प्रेजेंट एज कम्पेयर टू मीथेन। मीथेन जो है वो ज़्यादा माइन में प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन उसकी कंपेयर टू मीथेन काफ़ी कम होगी माइंस में। बट ये चीज़ जो है, दिस इज द थिंग विच ऑलवेज इट मेक्स अस वरी, that is it has a huge range for explosive, to form an explosive mixture। एक और जो चीज़ है that is मीथेन requires at least 12% ऑक्सीजन फॉर इग्निशन, यानी मीथेन को एक मिनिमम लेवल ऑफ ऑक्सीजन भी चाहिए है उसकी इग्निशन के लिए, अदरवाइज वो इग्निशन उसकी नहीं होगी। एंड इफ देयर इज नो इग्निशन इट मीन्स वी आर रिलेटिवली सेफ, फायर भी नहीं होगी और एक्सप्लोजन भी नहीं होगा। वेयर एज हाइड्रोजन के केस में it can explode at as low as concentrations of oxygen as 5%, यानी 5% पे भी ये एक्सप्लोजन इसका हाइड्रोजन गैस का हो सकता है। ये सिमिलर चार्ट है, मतलब दिस चार्ट इज ऑन द सिमिलर एनालॉजी जो कॉवर्ट्स डायग्राम थी, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है हमारी एक्सप्लोजिव जोन को हाइड्रोजन के केस में। सो हियर वी हैव नॉट कैपेबल ऑफ, लेट मी जूम इट, नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग फ्लेमेबल मिक्सचर। ये जो एक बड़ी सी हमारी स्ट्रिप है यहाँ पर, दिस इज द फ्लेमेबल या एक्सप्लोजिव जोन है हाइड्रोजन का, एक्सप्लोजन व्हेन मिक्स्ड विद एयर, एंड दिस इज इम्पॉसिबल मिक्सचर इन द एयर। सो ये जो दोनों जोन्स हैं, एक्सप्लोजन व्हेन मिक्स्ड विद एयर एंड एक्सप्लोजिव जोन्स, दीज आर द थिंग वी ऑलवेज नीड टू वरी अबाउट। अच्छा जी, उसके बाद एक और पोल्यूटेंट है रेडॉन। अच्छा, देयर इज अनदर वेरी सिग्निफिकेंट पोल्यूटेंट, दैट इज द डीजल पार्टिकुलेट मैटर, डीपीएम। वो थोड़ा बहुत तो शायद मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेवल पे तो कुछ एक दो चीज़ें इसकी शायद डिस्कस की थी, या व्हेन वी स्टार्ट टू टॉक अबाउट मिनरल डस्ट, उस वक्त शायद कुछ स्लाइड्स उसकी मैं रन करूँगा, बट विल डिस्कस दैट डीपीएम इन डिटेल इन योर 8th सेमेस्टर। सो रेडॉन के केस में अगेन, रेडॉन इज अ रेडियोएक्टिव मटेरियल। ये कहाँ पर पाया जाएगा? हर माइन में नहीं होगा, ये उसी माइन में होगा जहाँ पर हमें यूरेनियम या उससे रेलेवेंट कोई भी उससे रिलेटेड चीज़ों की माइनिंग कर रही है। सो प्राइमरीली इट इज़ फाउंड इन दी यूरेनियम माइंस। हाफ लाइफ इसकी है 3.82 days, लॉन्गेस्ट आइसोटोप की। और this is important, some traces of radon may attach or dissolve in human body, gets into the bloodstream, and its daughter products can irradiate various human organs। So इसका जो हाफ लाइफ है वो है ऑलमोस्ट 3.82 days, जो हाईएस्ट इसकी हाफ लाइफ है। और इसमें ये है कि इट कैन अटैच इट या डिजॉल्व हो सकता है हमारे ब्लड ह्यूमन बॉडी में रेडॉन, और व्हेन इट विल बी डिजॉल्व सो इट कैन बिकम द पार्ट ऑफ आवर ब्लड स्ट्रीम, और उसके केस में ये कुछ हमारे ऑर्गन्स को आप कह लें डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखता है। अच्छा जी, दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक इफेक्ट्स रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स के या रेडियो एक्टिविटी के ऑफ बीइंग एक्सपोज टू रेडियो एक्टिविटी, और एक होते हैं जेनेटिक इफेक्ट्स। सो सोमैटिक इफेक्ट्स आर दोज इफेक्ट्स व्हिच आर प्राइमरीली limited or restricted to the person who is being directly exposed to those radioactive materials, whereas जो genetic effects हैं, those are the effects which will translate or which will further transfers into the coming generations as well। यानी जैसे आपने शायद सुना होगा कि
कई कुछ लोग होते हैं, या देयर आर सम फैमिलीज, या शायद आपके रिलेटिव्स या जानने वालों में भी ऐसे होंगे कि अगर किसी एक फैमिली मेंबर को गॉड फॉरबिड अगर लेट्स से कैंसर है, तो अक्सर ये देखने में या सुनने में आता है कि उसके किसी ना किसी रिलेटिव्स को, भाई को, बहन को, मदर, फादर, या उससे जो अबव आप कह लें ग्रैंड पेरेंट्स में किसी ना किसी को कैंसर होता है। सो वो बेसिकली इवेंचुअली इसी तरह खैर आजकल हार्ट तो बड़ा कॉमन हो गया है, इसके लिए तो ज़रूरी नहीं है कि किसी का जेनेटिकली, ऑल्दो ब्लड शुगर या हार्ट हैं ये भी रिलेटेड हैं जेनेटिकली, but heart is and even blood sugar is becoming very common because of the products which we actually consume. इसकी वजह से थोड़ा सा इसका जेनेटिक इम्पैक्ट शायद उतना हम अब उसके अलावा भी हम कैटेगराइज कर देते हैं कि जी ज़रूरी नहीं है जेनेटिक इफेक्ट्स हों इसमें। बट ये है कि रेडियो एक्टिव या कैंसर के केस में सबसे पहले अगर कोई भी डॉक्टर को पास जाकर उसकी डायग्नोसिस करने के लिए, या वैसे भी उससे रिलेटेड डिजीज़ में अगर कोई भी डॉक्टर को जाके देखेगा, वो फर्स्ट क्वेश्चन शायद डॉक्टर ये करता है कि डू यू हैव एनी फैमिली हिस्ट्री, बिकॉज देयर आर सम जेनेटिक इफेक्ट्स विच आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द जनरेशंस। और उसमें वेयर सोमैटिक इफेक्ट्स कौन से हैं जो कि सिर्फ उस इंडिविजुअल तक यानी महदूद रहेंगे। फॉर इंस्टेंस एक बंदा है जो कि हायर एक्सपोज हो गया ड्यूरिंग हिज वर्क या ड्यूरिंग हिज प्रोफेशनल लाइफ टू सम रेडियो एक्टिव मटीरियल, सो दैट रेडियोएक्टिव मटीरियल विल इवेंचुअली डिस्ट्रॉय उसके लंग्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, या कोई और बॉडी ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, ब्रेन डैमेज कर सकता है, एंड द पर्सन विल डाई। सो बट दोज इफेक्ट्स माइट नॉट बी ट्रांसफर्ड टू हिज फॉलोइंग जनरेशन। तो ये दोनों तरह के इसके इफेक्ट्स होते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल के। अच्छा जी, उसके बाद another thing is like in case of dusts or gases, we describe their concentration in the form of pollutants like TLVs यानी threshold limit values की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। अभी बड़े कम लोग होते जा रहे हैं जी, there are just 14 participants including myself. Anyway, I will just conclude this radioactive content and then we'll have class tomorrow. तो अच्छा, अब इस केस में हम किस तरह से डिफाइन करेंगे इसका एक्सपोजर लेवल? क्या TLV होगी रेडॉन या रेडियो एक्टिव मटीरियल के केस में भी, या कोई और मेथड है? सो यहाँ पर हम TLV की फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं करते रेडियो एक्टिव मटीरियल या रेडॉन से एक्सपोजर को, यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ WL which is working level. So the maximum exposure for radon daughters it is 1 working level with a yearly cumulative exposure of 4 वर्किंग लेवल मंथ्स। सो अभी यहाँ दो चीज़ें हमने डिफाइन करनी है। एक है वर्किंग लेवल क्या होता है, जैसे TLV को तो हमने डिफाइन किया था ना कि ये थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू है फॉर 8 आवर्स ऑफ एक्सपोजर। सो हियर वी नीड टू डिफाइन व्हाट इज 1 वर्किंग लेवल, एंड देन वी आर आल्सो सेइंग कि एक साल में 4 वर्किंग लेवल मंथ्स से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होनी चाहिए। सो द सेकेंड थिंग विच वी नीड टू डिफाइन इज वर्किंग लेवल मंथ्स। Excuse me. So working level month is actually defined or referred as the exposure to 1 working level for 173 hours per minute। यानी एक पर्सन, एक माइनर जो कि पूरे एक मंथ में, अगर एक माइनर एक मंथ में 1 वर्किंग लेवल तक एक्सपोज होता रहे, कितने टाइम के लिए? एक मंथ में मैक्सिमम 173 आवर्स तक, यानी हर 8 घंटे में आप समझ लें कि वो एक वर्किंग लेवल मीट कर रहा है, और एक महीने में उसने अगर 173 एक महीने में चूंकि 173 उन्होंने वर्क आवर्स कैलकुलेट किए हुए हैं, उसकी बेसिस पे अगर उसने 1 वर्किंग लेवल कंज्यूम करता रहा या एक्सपोज होता रहा, तो वो हमारा कहलाएगा 1 वर्किंग लेवल मंथ। वेयर एज जो बेसिक थी वर्किंग लेवल को किस तरह डिफाइन किया गया है, ये आप शायद यहाँ रीड कर पाए। दिस इज द वर्किंग लेवल इज डिफाइंड एज दैट कंसंट्रेशन ऑफ शॉर्ट लिव्ड रेडॉन डॉटर्स, इसको भी फिलहाल अभी चले मैं नहीं इस शॉर्ट लिव्ड रेडॉन डॉटर्स को जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव मटीरियल या रेडिएशंस in a liter of air that will yield 1.3 into 10 raised per 5 million electron volts। यानी इतनी रेडियो एक्टिविटी आप कह लें या इतना रेडियो एक्टिव कॉन्टेंट मौजूद हो 1 लीटर एयर में, जो कि 1.3 into 10 raised per 5
मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स प्रोड्यूस कर देगा, तो उसको हम कह रहे हैं ऑफ अल्फा एनर्जी, तो उसको हम कहेंगे ये है 1 वर्किंग लेवल। अच्छा जी, इसके बाद बस 2-3 स्लाइड्स हो रहे हैं एंड देन आई विल लेट यू गाइस गो। गिवन द फॉलोइंग एक्सपोजर ड्यूरिंग अ शिफ्ट, अब एक बंदा टोटल 8 घंटे माइन में काम करता है, सो उस 8 घंटे के दौरान he is being exposed for 5 hours if he is being exposed to 0.5 working level। वर्किंग लेवल क्या था? वही कंसंट्रेशन ऑफ शॉर्ट लिव रेडॉन डॉटर्स, जो कि 1.3 इंटू 10⁵ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा एनर्जी 1 लीटर एयर में प्रोड्यूस कर पाए, उसके इक्विवेलेंट। अच्छा जी, 2 आवर्स के लिए ये बंदा एक्सपोज हुआ 0.2 वर्किंग लेवल पे, एंड देन फॉर 1 आवर, यानी जो रिमेनिंग उसका 1 घंटा शिफ्ट का रह गया था, उसके लिए वो एक्सपोज हुआ है 0.9 वर्किंग लेवल में। सो फाइंड द वर्किंग लेवल मंथ ऑफ एक्सपोजर। अब इसका हम वर्किंग लेवल मंथ कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? उसके लिए पहले हमें उसका पूरी शिफ्ट का एवरेज वर्किंग लेवल निकालना पड़ेगा। एवरेज वर्किंग लेवल के लिए 5 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 0.5 वेटेड एवरेज प्लस 2 इंटू 0.2 प्लस 1 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाई 8। सो इसका एवरेज वर्किंग लेवल आ गया 0.48 वर्किंग लेवल, यानी एक दिन में ये बंदा एक्सपोज हुआ है टोटल 0.48 वर्किंग लेवल तक। अब अगर इसको हमने मंथ में डिवाइड करना है, उसका वर्किंग लेवल मंथ निकालना है उस दिन के लिए, तो विल डिवाइड इट विद 173 एंड मल्टीप्लाई इट विद 8, क्योंकि ये 8 घंटे के लिए था, एंड इवेंचुअली विल गेट 0.022 वर्किंग लेवल मंथ। तो ये इसका हमने निकाल लिया वर्किंग लेवल मंथ इसके एक्सपोजर का फॉर ऑन दिस पर्टिकुलर डे। एट दिस स्टेज ये शायद आपको कैलकुलेशन थोड़ी समझ ना आ रही हो, या आप कह रहे हो पता नहीं क्या, कभी वर्किंग लेवल की बात की जा रही है, कभी वर्किंग लेवल मंथ की बात की जा रही है, फिर उसके साथ ही 1.3 10⁵ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स भी आ गए, अल्फा एनर्जी भी आ गई। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आपको एक तो ये थोड़ा सा अपना रिफ्रेश, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। हाफ लाइफ क्या है, रेडियो एक्टिव मटीरियल का बिहेवियर क्या है, उनकी रेडिएशंस को डिटर्मिन किस तरह करते हैं, और एट द सेम टाइम ये अल्फा पार्टिकल्स, गामा रेज, ये एनर्जी को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। यू मस्ट हैव heard all of these things in your most likely during your FSC. So once you have अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज थिंग्स, तो फिर ये जो वर्किंग लेवल या वर्किंग लेवल मंथ को अंडरस्टैंड करना आपके लिए थोड़ा सा रिलेटिवली इजी हो जाएगा। अच्छा जी, 2-3 स्लाइड्स में और शेयर करूंगा और फिर उसके बाद आई विल कंक्लूड। वैसे भी 5 मिनट रह गए हैं, सॉरी 7 मिनट रह गए हैं सेशन में। अगेन गैस मिक्सचर की कुछ डेफिनेशंस हैं। फायर डैम्प मीथेन प्लस एयर, रिपीटेशन हो रही है। ब्लैक डैम्प कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन को ब्लैक डैम्प कहा जाता है। आफ्टर डैम्प की अगर कहीं टर्म यूज हो रही हो, सो दैट मीन्स रेजिजुअल गैसेस और गैसियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम माइन फायर और एक्सप्लोजन, रॉक गैस, nitrogen, carbon dioxide, which creates oxygen deficient atmosphere, and smoke particles, soot। ये जो टेबल 11.1 है, ये बेसिकली तमाम गैसेस जो कि शायद हमने डिस्कस की हैं, उनको आप कह लें समराइज करता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज को। लेट मी क्विकली सी हियर। लेट्स से ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, density, relative density, gas constants, what are the sources of this particular gas in the mine, इनका physical attributes क्या हैं, smell, taste, odor, क्या क्या hazards हैं इससे related, TLVs, how we detect that, and what are their flammable limits if any। तो ये 2 टेबल्स जो हैं, ये आपको वो तमाम आप कह लें गैसेस और पोल्यूटेंट्स के बारे में एक समराइज फॉर्म बता देते हैं। लाइक आई मेंशन, यू डू नॉट नेसेसरली हैव टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स के इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, डेंसिटी क्या है, या हाँ ये बहरहाल आपको पता होना चाहिए कुछ केसेस में कि TLVs क्या क्या हैं, थोड़ी बहुत, मतलब यू शुड हैव अ गुड आइडिया अबाउट दोज पोल्यूटेंट्स और गैसेस जो कि शायद हम रिपीटेडली बार बार डिस्कस कर रहे हैं। बट हो सकता है कि वो भी आपको अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्विंग दी जा रही है तो वो भी आपको ऑलरेडी दे दिया जाए, बिकॉज more of your attention should be diverted towards understanding the material
rather than typically memorizing all those numbers and values. So चलें, I think just stop it here, क्योंकि आप लोगों मुझे को इतने ज़्यादा एनर्जेटिक लग भी नहीं रह भी को 12-13 ही गए हैं आप में से, तो that's it. If you have any questions, feel free to ask. Otherwise, I will just conclude this session in a moment. ठीक है जी. अच्छा, वो लोग those groups who have not yet finalized their CEP topic, you guys need to do this by tomorrow. उसको फिक्स कर लें जल्दी से, अदरवाइज आपको मैंने सुबह भी बताया है कि फिर यही है कि इवेंचुअली आई विल हैव टू मार्क यू डाउन एंड देन उसमें आपके जो भी पॉइंट्स वगैरह हैं थोड़े से डिडक्शन, नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी. आई डोंट वांट टू डू दैट. आई जस्ट वांट यू टू फिनिश ऑल दोज टास्क ऑन टाइम विद गुड पॉजिटिव एनर्जी एंड मोटिवेशन. जी स्लाइड्स मैंने आपको कहा ये मैं देखता हूँ शायद आज ही अपलोड कर दूँ, अदरवाइज़ एक आध रोज़ में ये तमाम स्लाइड्स अपडेट कर दूंगा मैं. और इसके अलावा ये है कि somebody was asking कि शायद आप लोग होमवर्क 2 अपलोड नहीं कर पा रहे, वो ज़रा बताइएगा. ऐसा है होमवर्क 2 आपका शायद आज उसकी डेडलाइन थी, आई एम नॉट श्योर आज है या कल है. आप में से कोई अगर अपना ब्लैक बोर्ड चेक करके देख पाए कि होमवर्क 2 अपडेट करने के लिए आपके पास 11 को है. हाँ ज़रा चेक कर लें उसमें, क्योंकि एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था कि सर आई डोंट नो ही वाज आस्किंग मी टू अलाउ समथिंग. लेट मी चेक. homework 2, where is that? Come on, homework 2. जी मेरे ख्याल में तो मैंने उसको अवेलेबल किया हुआ है. अब आप लोग चेक करके एक दफ़ा मुझे बता दें, उसमें कोई मसला तो नहीं है सबमिशन लिंक में. ऑफलाइन सबमिशन, those student can not make submission online, they can view their grades. हाँ तो ऑफलाइन सबमिशन ऑन है ना. हाँ जी, आप में से कोई चेक कर रहा है इसको? Yes, sir. बताइएगा यार मुझे, आपके पास वो लिंक विंक आ रहा है कोई अपडेट करने के लिए? सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपना काम ऑफलाइन भेज सकते हो. हाँ तो ठीक है ना, इट मींस यू शुड बी एबल टू सबमिट इट, राइट? नहीं सर, ये और नहीं ऑप्शन आ रही यार. जैसे हमने ये फर्स्ट सबमिट किया था ना, वैसी ऑप्शन नहीं आ रही है. एक मिनट है. चलें इसको आप ना, कल का दिन है ना अभी हमारे पास, इसको ज़रा आप फिगर आउट करें, चेक करें. मैं भी देखता हूँ कल, वरना इसको फिर दोबारा मैं चेक करके फिक्स करता हूँ. शो ऑटोमेटेड फीडबैक टू ग्रेड्स, हाइड स्टूडेंट्स नेम्स, असाइनमेंट, होमवर्क, collect submissions ऑफलाइन. ये तो ऑफलाइन तो ऑन होना चाहिए. मेरे ख्याल में आप लोगों को सबमिट करना चाहिए, बट जस्ट हैव अ लुक इनटू दिस बाय टुमारो. अगर कल भी ये मसला आ रहा हुआ तो उसको फिर फिगर आउट कर लेंगे.